پہلے ہم اپنے بھائی شہباز بھٹی کے لیے دعا کریں گے۔ اے پیارے قدوس خداوند خدا، تو جو وعدوں کا سچا اور برحق خدا ہے، آج شام ہم اپنے بھائی شہباز بھٹی کی یاد میں بیٹھے ہیں، جس کو تو نے اپنی پاک مرضی کے مطابق اپنے پاس بلا لیا، اور اس کی زندگی کے دن اتنے تھے جتنے تو نے اس کو دیے ہیں۔ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور انسانی بشری کمزوری کی وجہ سے خداوند جو غلطیاں ہوں اسے معاف کر، کیونکہ ہمیشہ تو امن پسند ہے اور تو امن چاہتا ہے۔ آج شام کے لیے تیری بڑی برکت چاہتے ہیں، ہماری یہ دعا سن قبول فرما، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریح تیری باتوں کی نور بخشتی ہے اور عقل مند بناتی ہے سادہ دلوں کو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں اجمل عرفان خان کا سب کو سلام، اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں رواداری تحریک اور رائزنگ سٹار فار ہیومینٹی کا، کہ جنہوں نے شہید حق کی 10ویں برسی کا انتظام کیا، اور خصوصاً عمران غوری صاحب کا، یہ ہمیشہ ایسے خدمت کے کام کرتے رہتے ہیں۔ میں بڑے عرصہ سے ان کو جانتا ہوں، بھائی ہیں میرے، اور بہت سارے پروگراموں میں شامل بھی ہوتا ہوں۔ تو آج ہم یہ جو برسی منا رہے ہیں، میں اس پہ چند باتیں کروں گا، لیکن اس تقریب کا آغاز ہم دعا سے کریں گے، اور میں بشپ آصف صاحب کو سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں۔ خداوند زندہ خدا، تو جو مہربان اور نہایت رحیم ہے، تو ہمارا رب اور خداوند ہے۔ خداوند، ہم تیرے سامنے جھک کر سجدہ کرتے ہیں، اور خداوند اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں اور اپنے تمام مسیحی خداوند قوم کو تیرے پاک لہو سے محفوظ کرتے ہیں، اور خداوند بڑی دانائی اور حکمت اور فہم و فراست چاہتے ہیں۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم میں سے بہتوں کو دلیری کا روح بخشا، دانائی اور حکمت کا روح بخشا، جس کے وسیلہ سے ہم سرزمین پاکستان پر موجود ہیں، اور خداوند گاہے بگاہے تیری گواہی دیتے ہیں۔ اے خداوند، میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، سب کو تو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ اے خداوند، ہم سب کو یونائٹ کرنا اور محبت کے پٹکے سے باندھنا، اپنے لہو سے ہم کو تقویت دینا، کیونکہ خداوند تیرا لہو زندہ ہے اور آج بھی قوت رکھتا ہے۔ خداوند، ہم اپنے پیارے بھائی شہباز بھٹی کی شہادت کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیرے کلام کے مطابق مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ابھی بہت ساری روحیں باقی ہیں جنہوں نے شہید ہونا ہے، اور انہوں نے تیرے پاس پہنچنا ہے، کیونکہ خداوند تیری حضوری میں جو شہید موجود ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خداوند تو جلد انصاف کا کام کر۔ اے خداوند خدا، اس تقریب میں تو ہمارے ساتھ رہنا، اور بھائی شہباز بھٹی جیسا ہمیں حوصلہ اور تقویت اور زور عطا کرنا، تاکہ ہم اس ملک میں تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، اور جو دلیری تجھ میں تھی اسی دلیری کے ساتھ ہم اس ملک میں خداوند آگے بڑھیں۔ خداوند، تو ہم سب کے ساتھ رہنا، اور تقریب کے باقی حصہ میں ہماری مدد اور رہنمائی کرنا، مسیح خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ آج کی برسی کی تقریب ہے، ہم ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب معزز مہمانوں اور معزز حاضرین کو بھی۔ اور میں
माइक गौरी साहब को देने से पहले चंद बातें करना चाहता हूं कि ये जो बरसी की तकरीब है इसे हमें पहले समझना चाहिए। इस पे बहुत सारी कंट्राडिक्शंस, अच्छा इस पे बहुत सारी कंट्राडिक्शंस है हमारे ईमान में, तालीमात में, मिशनों में, फिरकों में। लोग आ जाते हैं लेकिन अंदर से कंफ्यूज हैं कि पता नहीं होनी चाहिए कि नहीं। संधू साहब से, जुल्फ़िकार संधू साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना थोड़ा सा ज़ाहिर ख्याल करें, मेहरबानी। हमारे बुजुर्ग हैं। ललकारती हैं तुमको फलक बोस चोटियां, इतना उड़ो कि शम्सो कमर से उलझ पड़ो। वाजिबुल एहतराम साथियों, गौरी साहब मेरा ख्याल है यूहन्नाबाद में सबसे कमज़ोर तरीन आदमी है, मगर उनके प्रोग्राम ताकतवरों से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। शर्म आनी चाहिए उन लीडरान की कौम को जो MNMPA बिला वजह बने बैठे हुए हैं। क्या किया उन्होंने शहबाज भट्टी की तहरीक कत्ल, उसको शहादत के बाद असम्बलियों में बैठने का इनका क्या फायदा है? मैं ज़हनी तौर पर शहबाज भट्टी के साथ नहीं था, ना हूँ, क्योंकि उनका और मेरा नज़रिया फ़र्क है। मैं जुदागाना का हामी हूँ और वो मखलूत इंतखाबात के हामी थे। आप ये देख लें मखलूत इंतखाबात ये कितने MNMPA बैठे हुए हैं, किसी को आप जानते हैं? किसी का आपको नाम तक नहीं आता। मगर जब जुदागाना इलेक्शन होते थे तो हमारे वोट से नुमाइंदे जाते थे, कमज़ोर जाते थे, ताकतवर जाते थे, जैसे भी थे जाते हमारे वोट से। जिस मुल्क में आपसे हक़ नुमाइंदगी छीन लिया जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि हक़ नियाबत से मुरतब होती है तारीफ़ कौम। छिन गई नुमाइंदगी तो छिन गया कौमी एजाज़। मेरे अजीज साथियों, अभी चंद मिनट पेशतर इंजीनियर साहब ने कहा कि हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं बरमला ये कहना चाहता हूँ, कौम इकट्ठी है। चंद साल पेशतर यूहन्नाबाद का वाक़या इस बात का दलील है कि हम सब इकट्ठे हैं। हमें तकसीम किसने किया है? ये एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि यहाँ पर चर्चिस के लोग भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बात का वो बुरा ना महसूस करें। गुजारिश ये है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात एक है, हम सब का अकीदा भी एक है कि उनके बगैर निजात नहीं। मगर ये तफरीक क्यों है? आप यूहन्नाबाद के अंदर ही देख लीजिए कितने चर्चेज हैं। मेरा ख्याल है 200-250 से भी ज़्यादा ऊपर हैं। तो ये तकसीम किसने किया? ये तकसीम कौम को चर्चेज ने किया है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया। चर्चेज ने कौम को तकसीम किया। मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि हमें इस किस्म की बातें सुनाने से पहले अपने आप को यूनाइट करो और तमाम जब नज़रिया हक है तो बैठ के गुफ्तगू करें उनके साथ और एक प्लेटफार्म पर एक चर्च इस्तेमाल करें। अजीज साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। किसी वक्त जब कोई प्लेटफार्म हुआ पॉलिटिकल तो उस वक्त खुद बात करूँगा। मैं उमरान गौरी साहब को इस मुख्तसर से प्रोग्राम के इनकाद पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये तवक्को रखता हूँ कि वो आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम करेंगे। हमें जहाँ भी बुलाएंगे, जिस किस्म की ज़रूरत होगी, मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि ये कौम परस्त आदमी है और कौम परस्त जो है वो उसके लिए मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन क़याम अक़लियत पाकिस्तान के
चेयरमैन है नदीम हमीद सोता साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने 2 मिनट में अपना जाकर करें। तो आज के दिन की हमीयत से मैं शहबाज भट्टी साहब के लिए शेर कहना चाहता हूँ। जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बन के रहो, जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बन के रहो, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां बन के रहो। शहबाज भट्टी साहब, जैसे कि मेरे बड़ों ने कहा कि वो इलेक्टेड थे, सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं होके आए, मगर उन्होंने साबित कर दिया कि वो कई इलेक्टेड से भी ज़्यादा बेहतर थे और शहीद होकर उसका मुंह बोलता सबूत दिया उन्होंने। तो कौम के लिए दिल में दर्द होना ये बहुत बड़ी बात है, ख्वाह वो इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से इलेक्टेड जो लोग थे वो तो बेचारे 60 साल लगे उन्हें सेनेट में नशिस्तें लेते हुए। इन्होंने ये सिलेक्शन वाला आया था और सेनेट में आपको नुमाइंदगी भी दे के चला गया। तो ऐसे लोगों को कभी भूला नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूँ कि इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक शायर ने बड़ा खूबसूरत सा शेर कहा, अपने लिए जिए तो क्या खाक जिए हम। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए या गैरों के लिए जीना ये हौसला खुदावंद यसुम सी ने दिया। और उसके जो लोग हैं जो वाकई दिल में दर्द रखते हैं अपने लोगों की खिदमत का, वो मरकर हमेशा अमर रह जाते हैं। और कई लोग मर जाते हैं, मासवाए सिर्फ उनकी फैमिली ही उनको याद रखती है, उनके बेटे उनको याद रखते हैं। जब शहबाज भट्टी जैसे लोग मरते हैं तो नदीम भी, इमरान गौरी भी और नासिर भी उनके लिए ऐसी महफिलें सजा लेते हैं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इमरान भाई, मैं आपको क्रेडिट पेश करता हूं कि आपने बड़ा अच्छा अरेंज किया। आ गया वक्त पेशवाई का, आ गया वक्त पेशवाई का, अब तकाजा है खुद नमाई का। कौम के आए मसीह कौम के आए सुकूत जाग जरा, तुझको है सामना बुराई का। मैं नहायत एहतराम से जनाब राजा वाटर साहब को, समाजी कारकुन उभरते हुए हमारे नौजवान हैं। मुझे सियासत का इतना नहीं पता, लेकिन बस भट्टी साहब का मुझे ये पता था कि 295C का एक इशू था, केस था आसिया बीबी का। तो जनाब की बहुत सारी खिदमत थी, बहुत सारी मेहनत थी। तो इज़्ज़त-माब उस 295C के केस में शहादत इनको मिली। और मैं आज के जो अगले अल्फाज हैं, मैं भट्टी साहब के लिए कहूँगा कि मैं खुदा से दुआ करूँगा कि मुझे जो मौत है वो बीमारी से ना आए। खुदा करे मुझे भी कोई शहादत का मौका मिले जहाँ पे मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मैं भी कुछ करते हुए। तो मैंने फिर कहा, मैं अपने जितने भी मोहतरम मेहमान, मैं सबको बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन फिर आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ। अगर कोई गलती करता हूँ तो आप लोगों ने इस्लाह करनी है, बाहर से आकर किसी ने मेरी इस्लाह नहीं करनी है। तो मैं अब तक की मेरी जितनी भी खिदमत है वो आप सबके सामने आएंगे। लेकिन मैं इस फोरम से मैं जितनी भी पॉलिटिकल जमायतें हैं उन सबका बाइकआउट करता हूँ। जितने भी सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, हाँ वो मेरे जितने भी अजीज़ हैं, मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूँ कि जब तक शहबाज भट्टी जैसा अक्स नज़र नहीं आएगा उन पार्टीज़ में, तो मैं तब तक हर उस पार्टी का बाइकआउट करता हूँ। जब तक सिलेक्शन होगी, मे भी ये सिलेक्टेड लोग बड़ा कुछ करते होंगे लेकिन दिखने में कुछ नहीं आता है। उस वक्त बहुत अफसोस होता है जब एक जवान साला लड़की मेरी कौम की जब उठा के कोई अगवा कर लेता है, जबरी मतलब तब्दील करा देता है उसका। तब ये पार्टी में से कोई नुमाइंदा ऐसा कोई नज़र नहीं आता है जहाँ पे उसकी मैं क्लैपिंग करूँ, उसकी हौसला अफजाई करूँ। क्या अपने बच्चों को अनुमोदन हुए इस पार्टी में आप जाना जो खामोश बैठी हुई है, फिर देखने में आता है हमारा नौजवान जिसको बरहना करके उसके पिछवाड़े में सब मिर्चें डाली जाती हैं, वहाँ पे भी आपकी तमाम पार्टीज खामोश होती हैं। क्या बच्चों को आप लोग को नमूना दो, क्या पता ये पार्टी बनना आप लोग जो खामोश रहती हैं। उस वक्त दुख से भर जाता हूँ, पूरी रात सोच में पड़ा रहता हूँ जब मेरे सुनने में आता है, देखने में आता है कि मेरे चर्च को, मेरी इबादतगाह को, जिस निशान को लेकर हम सुबह उठते हैं, जिस निशान को लेकर हम रात को सोते हैं, उसकी बेरहमदी की जाती है। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो वहाँ पर बोल रहा हो। मैं मुल्क पाकिस्तान का वासी हूँ,
अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सी मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी कौम के हर उस नुमाइंदे का मैं एलानिया बाइकआउट करूंगा जो सारे जबर और सारे जुल्म देख के खामोश रहता है। ऐसी सियासत का कोई फायदा नहीं है। आप लोग भी एक चीज अपने जहन में डालें कि अगर हम वाकई में इकट्ठे हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना सीखें। जिस दिन हमारे दरमियान बर्दाश्त करने का मादा आ जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने का मादा आ जाएगा, जब हम ज़हनी तौर पर एक दूसरे के लिए मोहब्बत के लिए तैयार हो जाएंगे, तब शहबाज भट्टी जैसे वाक़यात नहीं होंगे। उसके बाद मुझे जो नजर आता है, मसीही कौम बहुत कम नजर आती है, मसीही हजूम ज्यादा नजर आता है। यहाँ पे अगर कोई एक मजबूत सोच रख के अपने व्हील्स को आगे लेकर चलता है तो उसको शहीद कर दिया जाता है, या एक लीडर बनने के लिए शुरू होता है, अपना आगाज करता है लीडरशिप के लिए, तो उसको छोटी सी उम्र में ही कत्ल कर दिया जाता है, उसको भी शहादत का दर्जा नसीब होता है। ये हम सबकी कमजोरियां हैं कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे कोई लीडर बनने का किसी का शौक भी नहीं दिल में आएगा। लीडर की पहचान उसकी कौम है, उसके लोग हैं। जब आप लोग ग्रासरूट लेवल पे मजबूत होंगे, आपको लीडर, आपके लीडर को काम करने का भी मजा आएगा, आपके लीडर को आवाज उठाने का भी मजा आएगा। एक लीडर आगे आवाज उठा रहा था, पीछे 35 पार्टियां जो उसकी तस्लील कर रही होती है, उसको जलील कर रही होती है। तो मैं अभी बात को खत्म करूंगा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा यीशु मसीह के नाम में कि ये आज टाइम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पे है, रोज आए दिन आप लोग नए वाकया सुनते हैं, बहुत सा जबर देख रहे हैं आप, बहुत सा जुल्म देख रहे हैं आप। हम लोग सब यीशु मसीह का नाम लेकर, जिसको हम मानते हैं, कलाम पाक बाइबल मुकद्दस को अपने हाथ में लेकर अपने आप से वादा करें, अपने दिल में तहैया करें कि मैं हर उस मसीह का साथ दूंगा, हर उस मसीह के साथ खड़ा हूंगा जो मेरी मसीह कौम के लिए आवाज उठाएगा, मेरी मसीह कौम के लिए कदम उठाएगा। एक दूसरे को हम सपोर्ट करें खुद से। ये जरूरी नहीं है कि जो सिलेक्टेड हैं वही नुमाइंदगान होंगे, नुमाइंदगान आप भी हो सकते हैं। अपनी बेटियों पर तवज्जो दें। इस प्लेटफॉर्म से ये बात पता नहीं करनी बनती कि नहीं, लेकिन अपनी बेटियों की तरफ तवज्जो दें। और मैं आज आखिर में ये कहूँगा कि अपनी बेटियों को बेटा बनाएं और अपने बेटों को लीडर बनाएं, ताकि मुल्क पाकिस्तान में रह के आप देखिएगा जिस दिन हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो मुल्क पाकिस्तान का नाम कितनी तेजी से रोशन होगा, कितनी तेजी से आगे जाएगा। अब सब लोग भी देखिएगा हमारे टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है, हमारी यूथ को वेस्ट किया जा रहा है, हर एक उस टैलेंट को स्पॉइल किया जा रहा है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए आगे चल के नाम रोशन करने का बायस बनेगा। लेकिन सब हमारी खुद की कमजोरी। आज हम घर में बैठ के जब तनकीद करते हैं, हमें बाहर निकल के काम करना है। फिर आखिर में कहूँगा एक दो, फिर मैं याद करूँगा, मैं आज के दिन में जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब शहबाज भट्टी शहीद साहब, मैं इनकी नज़र में, फिर मुझे शेर नहीं आते मुझे ज़्यादा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज के दिन में मैं आप सबके सामने खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि काश मैं बीमारी से ना मरूँ, मैं अगर मरूँ तो मैं शहीद की मौत मरूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरे जनाब मोहतरम, मैं आप सबको फिर एक दफ़ा तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की टोट से, शीशा ही टूट जाए, शीशा ही टूट जाए, वो शीशा तलाश करो। मैं दावत दूंगा जनाब आरिफ खोकर साहब को, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी MQM के इम्यूनिटी के। खूने दिल देखे निखारेंगे रुखे बरगो गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इस शहीद मिल्लत के लिए बात करना चाहता हूँ, चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा इनके साथ सियासी जो है वो इख्तलाफ रहा है। मतलब मैं उस इनकी जो पार्टी थी उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब मैं कौमी तनाज़र में देखता हूँ तो इनकी जो शख्सियत है, शहबाज भट्टी की शख्सियत एक जद्दोजहद का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक जुर्रत बहादुरी का नाम है। और मैं ख़ास तौर पे उन दिनों में मैंने इनके सारे वो तहरीक को, इनके सारे विजन को जो है वो देखा, परखा
اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ جو مسیحیوں کے رائٹ کے لیے، حقوق کے لیے جو ہے وہ ڈٹ گیا اور سینہ سے پر ہوا۔ حالات چاہے کچھ بھی تھے، لیکن اس نے بڑی جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی۔ میں ان کے جو سارے کام ہیں آپ یقیناً ان سے واقف ہیں، لیکن میں نے دیکھا بطور لیڈر وہ مسیحیوں میں ایک مضبوط، ارادہ مند، جرأت مند لیڈر تھا، اور خاص طور پہ اس نے یہ سینٹ میں جو نشست ہے اس کو جب وہ برسر اقتدار آئے، فیڈرل منسٹر تھے، تو انہوں نے اس بات کو، اس کوٹے کو جو ہے وہ لیا، 5% کوٹا جو ہے وہ منظور کیا، اور اسی طرح وہ ترقی کی منزلوں پر رواں دواں تھے۔ اور آج میں خاص طور پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے مذہبی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ بشپ ہیں، آپ چاہے سماجی طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، آپ چاہے ہیومن رائٹس کے حوالہ سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ، جس بھی محاذ پہ کام کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ آپ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ کمٹمنٹ ہوں، قوم کے ساتھ کمیٹڈ ہوں۔ آپ جس محاذ پہ بھی، آپ کا جو کرائٹیریا، آپ محلے کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ضلع کے لحاظ سے، پنجاب کے لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ آپ کے اندر قوم کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان کا بلیدان دیا، قربانی دی، تاکہ آپ لوگ بچ جائیں، بنی نوع انسان جو ہے وہ بچ جائیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی قوم کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلیں گے تو خدا جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو آپ کے ارادہ میں کامیاب کرے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہماری ریزنگ اسٹار فار کمیونٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ان کے 3-4 پروگرام اسلام آباد میں تھے، لیکن انہوں نے ہماری چھوٹی سی تنظیم کو بھی ٹائم دینے کی کوشش کی ہے۔ تو میں عرفان سمجھ صاحب سے بھی کہوں کہ وہ ایک منٹ ضرور ہمیں دے۔ آج میں شہباز بھٹی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک مختصر عرصے کے اندر جو ہے سینٹ کے اندر جو ہے کرسچنوں کو نمائندگی بھی دی ہے، اور مسیح کی خاطر جو ہے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ ہم چونکہ لائر ہیں، وکیل ہیں، تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہی بات کروں گا۔ 295C جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کیسز نہیں بن رہے جس طرح پہلے گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ میں ہوئے ہیں، تو اب گورنمنٹ جو ہے اس جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے نظر کر رہی ہے، تو آپ یقیناً جو ہے جلد اس کے بارے میں خوشخبری سنیں گے۔ تو یہاں پر شہباز بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی پیارے لیڈر اور بھائی تھے۔ ہم یہاں پر یاد کرتے ہیں آج بشپ جان روجر صاحب کو بھی، میں پرسنلی بھی ان سے ملا ہوا ہوں، وہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے بھی جو ہے اسی قانون کے تحت جو ہے اپنی جان جو ہے وہ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بچہ جو ہے لیڈر تھا بادل نام کا، اقبال مسیح سوری، تو وہ فیصل آباد میں دیکھیں، وہ بھی جو بچہ جو تھا اس نے بھی کرسچینٹی کے لیے بھی کام شروع کیا تھا، تو اس کو بھی بڑی بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، اس ملک کے اندر جو ہے ہم کام تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ کافی جو ہے مشکلات ہیں، تو ہمیں ان مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہم جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، ہمیں جو ہے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو شہباز بھٹی صاحب کی جو فیملی ہے، آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کس طرح سے اس دکھ کو برداشت کیا ہے۔ تو ہمیں ایز مسیحی جو ہے ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور ان تمام مشکلات کا جو ہے دلیری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور میں اپنی بہن نصرت چودھری کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی 1 منٹ ضرور اسٹیج پہ آئیں، کیونکہ خواتین کی طرف سے بھی نمائندگی آپ کی ہونی ضروری ہے۔ میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو رجا ولڈر صاحب نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں، یہ سب سے بہت اچھی کی ہیں باتیں، کہ لیڈروں کو صرف اپنے یہ ہے کہ ہم یہاں سے ووٹ لیں، یہاں سے جیت لیں، بعد میں کسی کی کوئی خیر خبر نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسیحی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کوئی بھی نہیں
इस टाइम पे देख रहा। अगर चर्चिस की बात की जाए तो हमारे पास्टर साहबान भी कहते हैं भी आप लोग अपनी बात किया करें, किसी की बात ना किया करें। और ये दुख है कि सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, और ऐसे हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि शहबाज भट्टी साहब ने किया है, शहादत का नाम लिया, और ऐसे मैं लेडीज़ को जब भी लेके चलती हूँ उनका यही बात होती है कि अभी हम वहाँ पे क्यों जाएं, अगर वहाँ पे ब्लास्टिंग कोई हो तो हमारे तो बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। और मैं हर काम दिलेरी से करती हूँ। मैं भी यही चाहती जो काम हो और शहादत में हो, ये ना हो कि हम किसी बीमारी की वजह से मर जाए। मैं हर काम दिलेरी से करती हूँ, मुझे बड़ा शौक है। जहाँ पे भी कोई मीटिंग्स होती है, कोई प्रोग्राम होता है, मैं हर काम में आगे सर अंजाम देती हूँ कि मैं किसी की बात ना सुनूँ, ठीक है ना। और मैं बहुत खुश हूँ, राजा वल्लर साहब तो हैं तो मैं उनको सलाम करती हूँ कि वाकई बहुत अच्छे भाई हैं। इस टाइम पे वो कौम की खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद और को इनको और ज़्यादा नवाजे। और जो हमारे नासिर साहब हैं, मैं इनको भी सलाम करती हूँ कि जो भी प्रोग्राम करते हैं सोच समझ के करते हैं, और इस बुनियाद पे करते हैं कि हमारे जो लोग हैं ये समझ जाएं कि वाकई हमने अपने लिए कुछ करना है और कदम बढ़ाना है। और हम कदम कैसे बढ़ाएंगे जब तक ये सब बहन भाई हमारे साथ मुत्तफिक होंगे। और मुत्तफिक कैसे होंगे जब इनको पता होगा कि एक बंदा हर काम करने की कुदरत रखता है, वो सबसे बड़ा कौन है? खुदावंद है। और हमने खुदावंद के निशान को जो नीचा करेगा हम उनके खिलाफ जरूर कदम उठाएंगे। अब मैं अपने जनाब इज़्ज़तमाब बिशप जनाब आसिफ रंधावा साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो ये अपने ज़ाहिर है दिल की किताब उसका आखिरी बाब और उसकी तीसरी आयत, और अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से वो तेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल-आबाद तक रोशन रहेंगे। कलाम पाक के पढ़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मैं तशरीफ़ रखिए। कलाम मुक़द्दस में जिनके वसीला से वो तेरे सादिक हो गए, वो आसमान पर नूर फलक की मानद और हमेशा जो है वो रोशन रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ किसी पास्टर के बारे में कलाम है, बल्कि उन सारे समाजी, रूहानी और सियासी और जितने भी लीडरान हैं उनके बारे में है, जो अपनी कौम की खातिर जो काम कर रहे हैं। और उनमें सरफरिस्त हमारे भाई शहीद मिल्लत शहबाज भट्टी साहब हैं कि उनके वसीला से आज हमें ये दलेरी और क़ुव्वत मिली है कि हम भी अपनी कौम के लिए कुछ करें। मैं सारे मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर राजा वाल्टर भाई का भी, कि उनमें एक दलेरी है और वो कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब यूनाइट हों, और सिर्फ बातों में नहीं, हर काम में। बहुत सारे नौजवान कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं हमारे पीछे कोई नहीं है, तो वो फिर बेचारे जो है वो हौसला हार कर वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं आप सबके ये मैं कलाम के साथ ये वादा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी मुझे बुलाएंगे, मैं वहाँ पर आपके साथ खड़ा हूँगा। पाकिस्तान में रहते हुए ये शहीद सिर्फ मसीही शहीद हैं और हमारे लिए, ये किसी और के लिए नहीं है। इसलिए हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना है, और इसमें हमें जानों के नजराने देने पड़ने हैं और पड़ेंगे, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन अकल और दानाई के साथ, तालीम के साथ और होशमंदी के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें दलेरी की ज़रूरत है, हमें तालीम की ज़रूरत है, हमें लॉयर बनने की ज़रूरत है, हमें इंजीनियर बनने की ज़रूरत है, और पढ़ लिख कर आगे क़यादत करने की ज़रूरत है। तभी हम अपनी कौम को उठा सकते हैं, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। और इसके साथ अगर कोई हमारा अच्छा लीडर उठता है, आगे आता है, तो हम सबको उसके पीछे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आसिफ रंधावा साहब हमारे मेहमान बड़ी
देश से हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा। उनका शुक्रिया अदा करते हैं इश्तियाक गिल साहब का, जो चेयरमैन भी हैं, क्योंकि साबका तो उस वक्त कहा जाता है जब टर्नओवर ख़त्म हुआ हो, तो टर्नओवर तो भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए हम इसको साबका नहीं कह सकते। हम इनको चेयरमैन ही मानेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। ये हमारे चेयरमैन ही रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। हम इनकी दावत देंगे कि वो बिला झिझक को हमारे साथ 1 मिनट में देगा। राइजिंग स्टार फॉर ह्यूमैनिटी का कि आज इन्होंने हमारे एक ऐसे मसीहा लीडर की बरसी के मौका पर इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम रखा कि जिस पर बिलाशुबा तमाम मसीही जमातें मुतफिक हैं कि वो वाकई ही हमारा हकीकी लीडर था। बेशक हमारी कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन उसमें शहबाज भट्टी का नाम हमेशा एक मसीही लीडर के नाम पर जाना जाता है। कोई भी MNA MPs किसी भी जमात का हो तो वो जब भी नाम लेता है तो शहबाज भट्टी का नाम लेता है कि वो हमारी कौम का हीरो था, कि जिसने अपनी जो जान की कुर्बानी है, जो नजराना है, हकीकी नजराना, जो जैसे मेरे मसीहा ने अपनी कलीसिया की है इस कौम के लिए, इस बनी इंसानियत के लिए अपनी जान देकर हमें निजात का रास्ता दिखाया, ऐसे ही हमारे जो सियासी लीडर थे शहबाज भट्टी साहब, उन्होंने मसीहा की पैरोकार होने का सबूत अमली ज़िंदगी से पेश किया कि उन्होंने अपनी जो जान का नजराना है वो अपनी कौम के लिए पेश किया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे ख़ासकर जो सियासी रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनको लोग उस नज़र से नहीं देखते, उनको वो अहमियत नहीं देते। अगर मैं नून लीग का चेयरमैन हूँ तो मैं PTI के लीडर को अच्छा नहीं जानूंगा। अगर कोई PTI के चेयरमैन है, जब वो वर्कर है, तो वो नून लीग के ऊपर मुख्तलिफ ताने कसेगा। लेकिन शहबाज भट्टी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि उन पर कोई भी उंगली नहीं उठाता, कि उनकी जो कुर्बानी है वो वाकई ही हमारी कौम के लिए कुर्बानी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम तमाम मजहबी लीडर और सियासी लीडर और वर्कर, तमाम कौम इस बात पे मुतफिक हैं कि उन्होंने वाकई कौम के लिए अपनी जान का नजराना दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फर्स्ट हिस्ट्री है कि जिसको वाकई किसी ने एक कौमी लीडर के तौर पर जाना है, और वो भी जाना है अपनी जान देने के बाद। लोग तो यहाँ चलते फिरते यहाँ किसी को कबूल नहीं करते। असल लीडरशिप ये होती है कि उसकी ज़िंदगी के बाद उसका जो काम है उसको सराहा जाए, उसकी जो कुर्बानी है उसके बाद पता चला कि इसके ज़िंदगी के बाद में लोग उसको किस नज़र से देखते हैं। तो मैं इस पर बिलाशुबा ये कह सकता हूँ कि तमाम जितने भी हम पाकिस्तानी मसीही हैं और पाकिस्तान से बाहर मसीही हैं, हम इस बात पर मुतफिक हैं कि शहबाज भट्टी साहब हमारा वाकई कौमी हीरो था और रहेगा। और उनके जो काम है, ख़ासकर जो 5% कोटा था मसीहियों के लिए, ये बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने अपने टर्न्योवर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये बहुत बड़ा हमारे मसीहियों के लिए एक आसान किया था कि आज 5% कोटे के ज़रिया से हम मसीही हर जगह पाए जाते हैं आला ओहदों पे। आज मैं सिविल कोर्ट में था तो वहाँ अफजल बेग साहब आज वहाँ मैं पेश हुआ था, तो वो एक मसीही सिविल जज हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जब उनसे रीडर से पूछा कि आपको पता है कि ये हमारी बिरादरी से हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे पता है कि आपकी बिरादरी से हैं। तो ये देखिए कि आज ये 5% कोटे की वजह से है कि आज हमारे हर शोबा में मसीहियों को ये मुकाम मिला है कि हमारे लिए एक रास्ता मुतय्यर कर गए हैं। उनकी जो कुर्बानी थी वो तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन उससे कुर्बानी से पहले जो उन्होंने काम किए हैं, स्पेशली 5% कोटे का, ये बहुत बड़ी बात है कि उनका आज जो किया हो काम है, आज हम मसीही उसको पायत तकमील तक पहुँचाएँ, उनका जो मिशन है उसको आगे लेकर जाएं, और एक दूसरे की जो हम लेग पुलिंग करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसीही जो लीडर हैं अक्सर कहते हैं जी मसीही लीडर नहीं होता, मसीहियों में लीडर कोई नहीं है। मैं समझता हूँ मसीहियों में वाकई लीडर नहीं है, ना मसीहियों में लीडर होगा। इसलिए
कि जो मेरा मसीहा था उसने लीडर बन के दिखाया। जो उसके पैरोकार हैं वो लीडर नहीं बनेंगे, वो आवाम के खिदमतगार ही रहेंगे। इसलिए हमें फ़ख्र है कि हम, चाहे मैं कि यूसी का चेयरमैन था, मैंने आज तक अपने को लीडर नहीं समझा, अपने आप को वर्कर समझा है, अपने आप को खिदमतगार समझा है, अपने मसीहा का पैरोकार समझा है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी मसीही ज़िंदगी का जो नमूना है वो थोड़ा थोड़ा मुझ में झलकता है। एक दिन मेरे साथ मेरे वो दोस्त थे, वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे वो लड़के ना हमें मजाक कर रहे थे कि ये देखो ये आपका कैसा चेयरमैन है। उसने कहा क्या हुआ जी? लो जी, चेयरमैनों के साथ इतने बड़े लोग जाते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनके साथ इतने बस ये अकेला लगा फिरता है, तो ये क्या चेयरमैन है? तो वो बड़े गुस्से से कह रहे थे भाई ना आप मेहरबानी आप थोड़ा सा ना अपना प्रोटोकॉल रखें। और मैंने कहा हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं एक मसीही हूँ, तो मैं पैदल भी चलता हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे मसीहा ने चल फिर कर लोगों के लिए खिदमत की थी। और मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है कि मेरे पास मेहरान है, मेरे पास मैं पैदल हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं इस पर अपना फ़ख्र नहीं महसूस करता। मेरा फ़ख्र यही है कि मैं एक मसीही चेयरमैन हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ चेयरमैनों के साथ, तो वहाँ मेरा तारुफ यही होता है कि इश्तियाक गिल कौन है जी योनाबाद का चेयरमैन, वो मसीही चेयरमैन है। तब मुझे फ़ख्र होता है कि मैं एक मसीही मेरे नाम से गिनाना चाहता है। उसके अदरवाइज मेरी कोई इसमें खूबी नहीं है, लेकिन मैं जब ये होता है कि ये चेयरमैन कौन है, ये मसीही चेयरमैन है, तब मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। अदरवाइज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद नहीं होता कि मैं चेयरमैन बन गया हूँ। ये सब मेरे मसीहा की देन है। और ऐसे ही मैं अपने तमाम यहाँ जो मजहबी लीडरान बैठे हैं और समाजी रहनुमा बैठे हैं, यहाँ सियासी रहनुमा बैठे हैं, इन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हमारे सियासी रहनुमा है, जो हमारे मजहबी सियासी समाजी जो लीडर हैं वो मसीही हैं। और उनकी ज़िंदगी क्या है, अजीब मशीर थे वो, अजीब मशरा देने वाले थे वो। उनकी ज़िंदगी देखें, ना आपको तलवार नज़र आएगी, ना आपको जंगो जदल नज़र आएगी, ना किसी के खिलाफ बात नज़र आएगी। कि मसीह की कैसी तलीम थी? वो कहते थे, शकीर ने कहा था कि देखें वो आपके नाम पर वो तलीम दे रहे हैं। मसीह ने कहा था कि मेरे नाम पे दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने नफी नहीं की कि अच्छा ये वो कौन है मेरे बगैर मेरी तलीम दी जा रहा। कहने का मतलब ये है कि वो बर्दाश्त, उनमें बर्दाश्त थी कि जो अच्छा काम करता है उसको करना चाहिए, उसके खिलाफ कोई बात ना करनी चाहिए या ना सुननी चाहिए। यही मेरा आज का पैगाम है कि जो हमारे शहबाज भट्टी साहब हैं, जो उनका खून है, हम उसके सदके जो अपनी ज़िंदगी है, अगर मुझ में कमी है तो मैं अपने इन शुहदा की वजह से इनकी जो यादगिरी है उसको याद करके अपनी दोबारा ज़िंदगी का अमल करते हैं कि अगर इनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है तो हमारी भी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी चाहिए। कि जो कौम के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बेशक हम इंसान हैं, हमें भी बहुत गलतियां हैं, हम भी बहुत कोताही हैं, हमें बहुत कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, लेकिन जब मेरे मसीहा का जलाल हम पे होता है तो हमें हर चीज़ से वो हमारी कमियाँ पूरी हो जाती है। और मैं आप तमाम लोगों को अपने जो आज का जो हमारा गौरी साहब ने ये प्रोग्राम किया, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ऐसे लीडर के लिए आज मुझे यहाँ बुलवाया गया है कि जिसके लिए वाकई ही मुझे फ़ख्र होता है कि वो हमारी कौम का एक लीडर था, रहनुमा था। और हमें ऐसे ही नौजवान और चाहिए कि जो अपनी कौम के लिए ऐसे ही अपनी जान कुर्बान करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं अपने राइजिंग स्टार के चीफ एडवाइज़र को भी दावत दूंगा, नासिर वलीम साहब को, कि वो भी हमें तकरीबन हज़ारे ख्याल में ज़रूर हमारे साथ। बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे राइजिंग स्टार फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से ये तकरीब जो ख़ास तौर पे 10वीं बरसी जो कि शहीद मिल्लत शहबाज भट्टी के लिए मुनक़्क़द की गई है, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे पहले बहुत सारे दोस्तों ने, भाइयों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं आपसे 2-3 बातें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की बहुत सारी चीज़ों की, जिसमें एक कौम बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई। दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये कौम बनने की ख्वाहिश या ख्वाब या मुत्तहिद होने का ख्वाब, ये कैसे पूरा हो सकता है?
शहबाज भट्टी की मिसाल ले लें कि जब उन्होंने इंफरादी सोच से इज्तिमाई सोच तक का सफर किया तो उन्हें वो इज्जत मिली जो किसी एक आम लीडर को नहीं मिलती। शहबाज भट्टी जिसने हकीकत पसंदी से मसलों को, मसाइल को जानकर उस पर अमल पसंदी का मुजाहरा किया, तब वो उसने ये मकाम हासिल किया कि आज हम उनकी बरसी मनाने को हैं। मैं समझता हूं कि कौम बनने के लिए या यूनाइट होने के लिए, दोस्तों ने कुछ बात की, यूनाइट होने के लिए, कौम बनने के लिए किसी एक इशू की जरूरत होती है। खाली लफ्ज यूनाइट कहने से यूनाइट नहीं कभी कौम होती। आपको किसी एक इशू पे आपको एक होना पड़ेगा, सोच एक रखनी पड़ेगी, तभी हम लोग, मैं समझता हूं कि बरादरी से कौम तक का सफर कर पाएंगे। शहबाज भट्टी साहब के लिए तो हमारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मेहमान दोस्त भी हैं जो कि बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि मुत्हिद हो तो बदल डालो निज़ाम-ए गुलशन, मुत्हिद हो तो बदल डालो निज़ाम-ए गुलशन, और अगर मुंतशिर हो तो शोर बुझाते क्यों। बहुत शुक्रिया। बाबू जोसेफ से भी दावत दूंगा कि वो प्लीज़ अपने ज़ारे ख्याल कर लें ताकि मेरे अजीजों, अक़लियत, मसीहत, अमन पसंद, अक़लियत, मसीहत, अमन पसंद। पाकिस्तान अमन हमारे आने से बना। अगर SP सिंगा बहादुर वोट ना डालते तो ये मुल्क वजूद में नहीं आना था। अब क्या है, हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हमारे जो नौजवान होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो आगे तरक्की करना चाहते हैं, जो लोगों को मदद देना चाहते हैं, उन्हें डिस्करेज किया जाता है। जिसने भी आवाज़ उठाई है उसी को दुनिया से ख़त्म किया गया, और ये कुर्बानियाँ चलती रहेंगी, हमारी आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी। हमेशा हम इंशाल्लाह खुदावंद के फजल और करम से हमारे जो नौजवान हैं वो लीडर को देखना चाहते हैं। पाकिस्तान हमने बनाया, उन्होंने बनाया, वो बाहर से आए थे। ये हमारा हिस्सा पाकिस्तान, इसका जो गवाह है वो मुक़द्दस तोमा रसूल है, रसूल पाक को हिंद मसीहत पहले है। तो इसलिए हमें बेदार होने की ज़रूरत है। हम अपने ज़िंदगी में देखें कि हम कहाँ हैं, आगे आने वाली नस्लें कैसी होंगी। ये भी शुक्र है खुदा का कि हमने यनाबाद बनाया ताकि हम सब मसीह लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। जहाँ हमारे लोग थोड़े थोड़े हैं वहाँ परेशान हैं, और ये हमारे रहनुमाओं की मेहरबानी है जिन्होंने कौम को अलहदा किया ताकि वो लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे जीतो इसी तरह अमन के साथ साथ सारे काम चलते रहेंगे। हम अपने शहबाज भट्टी के विजन के साथ हैं, जो उसका अज़म था, जो उसकी कुर्बानी थी, ताकि मसीह लोग आज़ादी हासिल करें और इस मुल्क में रहकर अपना हिस्सा मांग सकें, अपनी आप पहचान बन सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। हाँ, मैं टाइम को ज़ाया ना करते हुए प्रोग्राम के बस आखिरी मरहला में पहुँचा हूँ। मैं अब जनाब ग्लो फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब विक्टर खान साहब को दावत दूंगा, जिनका जो रिलेटेड हैं जनाब पीपल पार्टी से भी, मैं उन्हें दावत दूंगा कि जनाब उधर। बिछड़ा कुछ इस तरह कि रुत ही बदल गई। मेरा नाम विक्टर खान है। ग्लो फाउंडेशन का तो इन्होंने वैसे ही तारफ़ करवा दिया, क्योंकि आज ये जो बरसी है वो मेरे कायद जनाब शहीद हक, शहीद इंसानियत और शहीद जमहूरियत जनाब शहबाज भट्टी साहब की है। मेरे भाइयों ने बड़ी बातें की, मैं थोड़ी थोड़ी बातें करना चाहता हूँ, टच देना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और मेरा ताल्लुक जो था वो ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी
अलायंस से भी था, जिसके शहबाज भट्टी साहब चेयरमैन थे। और उन्होंने जब ये अपनी जमात बनाई तो हम इनके साथ चलते रहे, और 2002 से उनकी शहादत तक और आज तक हम उनकी जमात में ही हैं। परसों हमारे दोस्तों ने, जैसा कि आपको पता है, सब लोग जानते हैं परवेज रफीक साहब को, वो 2 दफा इनकी जमात से, लेकिन प्लेटफॉर्म जो था वो इनका था, लेकिन जो पार्टी थी वो पीपल्स पार्टी थी। 2 दफा जो है वो पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म से वो एमपीए रहे। वो आए हुए हैं हमारे दोस्तों ने, जो हमारा वहाँ का डिवीजन है, उन्होंने वहाँ पे उनकी जो बरसी है वो मनाई, बल्कि हम हर साल ही उनकी बरसी जो है वो मुख्तलिफ प्लेसेस पर मनाते हैं। मेरे भाइयों ने बड़ी बातें की, अच्छी भी बहुत सारी अच्छी है। हमें कौम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 5% कोटे को भी साइड पर रहने दें। असाई लफ्ज़ जो कहा उन्होंने, उसमें जो मसीह आया उसको भी रहने दें। ये 4 सीटें जो आपको दी गई, 4 अपना सूबों में जो आपको सेनेट में सीटें दी गई, उनको भी रहने दें, उनको भी साइड पे कर दें। अब जो हमारी जो पीटीआई है वो भी ये क्लेम करती है। हमारे भाई यहाँ पे नून से बैठे हुए इश्तियाक गिल साहब, मेरे भाई पीएम क्यू से बैठे हुए हैं, नासिर भाई जो है इनका ताल्लुक एमकेएम से है। हमारे बड़े दोस्त पुराने यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे मोतीलाल है और दूसरे हैं। तो हम सब ही समझते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने शहबाज भट्टी साहब को बहुत करीब से देखा है, बल्कि उनके साथ I8 में यहाँ पे उनका मर्डर हुआ था, बाहर कोने पे घर से निकलते हुए मैंने बहुत सारी मीटिंग्स, और बहुत नफीस इंसान थे। मेरे भाई ने कहा जी कि मेरा तल्लुक तो नहीं था। ठीक है, हर बंदे की एक अपनी एफिलिएशन होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का हर बंदे के साथ ही हो, हर बंदे का हर पार्टी के साथ हो। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि हम यूनाइट, हम कौम बने। हमें सबसे पहले तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम सीटों के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मन्नू एमपीए की टिकट हमने नहीं मिल जाए, बाकी कौम जिथे जाती जावे। जुमैयत इस्लामी में और ऐसी ये तरीके लबैक जो रिजवी साहब को हुए हैं, उनसे लोग सीटें मांगते हैं। तो फिर किस तरह कौम बनेगी, कैसे कौम बनेगी? फिर शहीद भट्टी, अपना शहबाज भट्टी तो कोई नहीं बनेगा। शहबाज भट्टी ने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था। यहाँ पे मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ, मैं एक मिनट जरा ज्यादा शायद ले जाऊं। मैं यहाँ पे सुलेमान तसीर साहब का भी जिक्र करना चाहूंगा कि सुलेमान तसीर ने, चले ये तो मेरा भाई था, एज में मेरे तो छोटे थे, इन्होंने तो मेरी बात करनी थी। सुलेमान तसीर ने हमारे से क्या लेना था? हमने क्या क्रेडिट दिया आज तक? कुछ क्रेडिट दिया? मेरे से शायद सीनियर भी बैठे हुए, बहुत साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन हम किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। ये बस है ना होवे कि विक्टर अगे निकल जावे। इमरान गौरी जड़ा यार है तो फाइनेंशियली बड़ा वीक है, ही ना कि अगे निकल जावे। लेकिन मर्तबे और इज्जत जो है, ये सारी बाइबल कहती है कि ये खुदा की तरफ से है। कोई बंदा किसी को अगे नहीं जला सकता, ना लाने की कोशिश करता जी। गुजारिश ये है कि शहबाज भट्टी साहब बहुत, क्योंकि मेरा बहुत ताल्लुक उनसे रहा है, बहुत करीब से, लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरे भाई ने और भी बात की अपनी बहु बेटियों की, जैसे मैंने डॉक्टर साहब को कह रहा था, मैं कि सुन के आए ऑफिस में, ये मेरा ऑफिस आ ही है पाकर में, तो मैंने कहा यार कि हाथ तुम माइक फड़ा देता सी, लेकिन उसने बातें सारी ठीक की है। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे भाई यहाँ पे सीनियर बैठे हैं वो इंटरव्यू जरूर सुने। उसने अच्छी बातें की है, कड़वी भी की है, लेकिन जितना कड़वी चीज जो है ना, वो क्या, एक बाइबल में मेरा ख्याल कहीं पे लिखा, मैं पादरी तो नहीं हूँ,
کہ جو کڑوی چیز ہے وہ جو اندر جاتی ہے تو پھر پیٹ جو ہے وہ صاف کر ہی دیتی ہے. تو کڑوی چیزیں کھائیں گے تو پھر ہی ہم, میرا خیال ہے کہ صحیح ہاضمہ ہمارا رہے گا. لہٰذا آج ہم اپنے بھائی کی 10ویں برسی منا رہے ہیں اور یہ مجھے خوشی ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں, مجھے خوشی ہے کہ پہلے کی نسبت اب یہ جو ہے یہ لوگ اس کو زیادہ منا رہے ہیں. اس ٹائم اس بار مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اب ہمارے لوگ جو ہے نا اس دفعہ بہت زیادہ جو ہے وہ منا رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے شہباز بھٹی اور گھر بہ کے ماری جانا میں کی ہونا میں ہارٹ اٹیک ہونا, شوگر دا اٹیک, یا کچھ کر کے مریے تو کچھ تو ہوئے نا, کوئی 4 بندے جانتے تھے ہوں. لہذا ہمیں سب کو اپنی قوم کے لیے شہباز بھٹی بننا ہے. بہت بہت شکریہ. پتھروں کے آگے آئینہ رکھ دیا, پتھروں کے آگے آئینہ رکھ دیا, ایک کرچی ہوا دوسرا رکھ دیا, دل کو خالی نہ ہونے دیا غم سے, جب پرانا ہوا تو نیا رکھ دیا. کس نے نیندیں چرا لی میری رات کی, کس نے نیندیں چرا لی میری رات کی, کس نے مجھ کو ایک جگہ رکھ دیا. نہ جانے کس گھڑی یاد آ اترے تیری, آگ کی سیڑھیوں پہ دیا رکھ دیا. محترم جناب, آج پروگرام کے اختتام میں فادر جیمز چنر صاحب URI کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, لیکن انہوں نے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جناب عاشر نذیر صاحب جو پاکستان کے ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں URI کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو میں فادر جیمز چنر کا بھی شکر گزار ہوں کہ 20-25 سال ہو گئے مجھے ادنے سے آدمی کو بین المذاہب پہ کام کرتے ہوئے, لیکن ادنا ضرور ہوں, لیکن 76 پروگرام کروانا پورے پاکستان میں میرے مقابلے میں پروگرام نہیں کوئی کروا سکتا. بھرپور تالیوں میں بھی کہہ سکتا ہوں, اور غم کی گھڑی بھی ہے, سوزناک واقعہ بھی ہے. شہباز بھٹی کے حوالے سے 10ویں برسی ہے, تو میں جناب عزت مآب جناب عاشر نذیر صاحب کو زیر صدارت آج پروگرام کرتا ہوں. مسیح یسوع میں آپ سب کو میرا اسلام پہنچے. خداوند کی تمجید ہو جو ہم ناچیز لوگوں کو استعمال کرتا ہے. یہ وہی خدا ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا, کیونکہ فرعون جو ہے وہ اس قوم پر ظلم کر رہا تھا اور اس میں بہت ساری ان پہ مشکلات تھی, اور موسیٰ کو خدا نے استعمال کیا کہ وہ اس قوم کو فرعون کے شکنجے سے نکال لے, اور فرعون نے ایسا ہی کیا. آج کی جو برسی ہے 10ویں برسی, اور میرا پہلا آج یہ موقع ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ ہوں. آج کی اس برسی کے لیے عمران غوری صاحب نے اور ناصر ولیم صاحب نے اس کا اہتمام کیا, اور یہ بہت ہی میں اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے یوحنا آباد میں ان تمام جو برگزیدہ لوگوں کے ساتھ اس برسی کا اہتمام کیا. میں سن رہا تھا کہ لفظ بار بار ایک آ رہا تھا کہ ہمارے درمیان لیڈرز کی بہت کمی ہے, اور مجھے آج یہاں پر لگ رہا ہے کہ عمران غوری صاحب نے اور ناصر ولیم صاحب نے یہاں پر جو لیڈرز ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. آپ سب اپنے میں لیڈر ہیں اور آپ سب کو خدا نے کسی کام کے لیے چنا ہوا ہے. ابھی ہمارے روزے دکھوں کے ایام جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور جب شہباز بھٹی صاحب شہید ہوئے تب بھی یہی ایام تھے, دکھوں کے ایام تھے. یسوع جب صلیب پر تھا تو جب وہ بڑے دکھ میں اور اذیت میں تھا تو اس نے بڑے پکار کر کہا, اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو کیا جواب آیا؟ جان دینے تک وفادار رہ
तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो ये बाइबल की बातें हैं, ये खुदा इस्तेमाल करता है। यीशु जब हैकल में गया तो यीशु ने, क्योंकि आज यहाँ पर सारे को जिक्र कर रहे हैं, ये MQM से है, कोई पीपल पार्टी से, तो हर जमात का कोई मंशूर होता है। तो यीशु जब हैकल में गया तो यीशु ने अपना वो मंशूर पेश किया और उन फिकी फरीसियों को जो सारे आलम थे, जो बड़ा इल्म रखते थे, और यीशु ने कहा कि मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि अंधों को आंखें, मस्कीनों को खुशखबरी और कैदियों को क्या दूं, रहाई दूं। तो शहबाज भट्टी ने वही किया जो यीशु का जो मशहूर था। वो पीपल पार्टी में थे, उनको सिलेक्ट किया या उनको नॉमिनेट किया, जो भी था, लेकिन वो काम खुदा का कर रहा था, क्योंकि खुदा ने उसे चुन लिया था। तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, ये खुदा ने उसको चुना हुआ था। हम तो यहाँ पर क्योंकि इंसान है और इंसानों की तरह सोच रहे हैं, लेकिन जो खुदा है वो हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। बहुत हम क्योंकि दुनिया में रहते हैं और दुनिया के लोगों की तरह सोचते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें मुआशरा सिखाता है, कुछ चीज़ें हमें फितरत सिखाती है। कहते हैं कि वो जो खेत है, अगर उसको हल चलने से दुख होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है, तो क्या वो अनाज पैदा कर सकता है? वो कभी भी अनाज पैदा नहीं करेगा। कभी आपने वो देखा, वो खेत जहाँ पर हल नहीं चलता तो वहाँ पे क्या होता है? जड़ी बूटियाँ होती हैं, वहाँ पे घास फूस होता है, वो जमीन बंजर हो जाती है। लेकिन जहाँ पर हल चलता है, वो दर्द तो सहती है वो जमीन, लेकिन वो क्या करता है? फूल उगाता है, फल देता है। और वो पत्थर, वो भी कभी मूर्ति नहीं बनता, अच्छी मूर्ति नहीं बनता, जिसको हथौड़ी और छैनी की सख्ती बर्दाश्त करने की आदत ना हो। तो ये जब मैं शहबाज भट्टी साहब के बारे में सोचता हूँ तो मैं उन्हें उस चश्मे की मानद देखता हूँ जो पहाड़ की चोटी से फूटता है। और वो जो चश्मा आपने कभी पहाड़ों में देखा है, वो पानी जो होता है ना, ये जो मिनरल वाटर है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं। वो कुदरती जो पानी होता है, जो नेचुरल वाटर होता है, जो पहाड़ की चोटी से निकलता है और नीचे आता है जमीन को, उस बंजर जमीन को सैराब करने के लिए नीचे आता है और उस बंजर जमीन को फूलों की तरह, खुशबू की तरह फैला देता है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, वक्त हमें सिखाता है। और ऐसी और बहुत सारी मिसालें जो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन फादर जेम्स चन्नन ओपी साहब जो कि रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं URI पाकिस्तान के और डायरेक्टर है पीस सेंटर के, 40 साल हो गए हैं उनकी ज़िंदगी। ये जो अमन और मजहबी हमआहंगी की बातें हम कर रहे हैं, इसके लिए वो काम कर रहे हैं और शहबाज भट्टी उनके साथ काम करते रहे हैं। अक्सर फादर जी उनका जिक्र करते हैं, कभी आप पाकर में हमारे ऑफिस में आए तो शहबाज भट्टी साहब की तस्वीरें हमारे ऑफिस में लगी हुई हैं। बहुत दफ़ा हम कहते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं करते। आज भी हम बहुत सारे शिकवे कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि बेहिम्मते ने वो जड़े शिकवा करन मुकदरा ना, उगन वाले उग पैंदे ने पहाड़ पे सीना पत्थर दा। मुझे इतनी वो लफ्ज़ नहीं, मैं इतना अच्छा वो स्पीकर नहीं, लेकिन ये वही बातें हैं जो हम सुनते हैं और करते हैं। बिशप जॉन जोसेफ, उन्होंने भी अपनी जो जान है, जो कुर्बानी है, वो यीशु की उसी तरीके से, उसी लफ्ज़ों के लिए दी जैसे वो कहते हैं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो बिशप जॉन जोसेफ ने भी वही किया और शहबाज भट्टी साहब ने भी वही किया। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, बल्कि आप सब गवाह हैं। जब वो सूरत हाल चल रही थी पाकिस्तान में, तो शहबाज भट्टी साहब को भी पता था कि क्या होने वाला है। जब आप खतरा देखते हैं, अभी कोरोना चल रहा है, तो आप सारे डरते हैं यार कोरोना ना हो जाए, एहतियात करते हैं, बचते हैं, दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। लेकिन जब आप किसी इतने बड़े कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, ये ऐसे ही है कि आप आग के समंदर में जाने वाले हैं और आपको पता कि आपने जाना है, आप उस चीज़ से पहले से आ गए थे। लेकिन शहबाज भट्टी साहब ने वही काम किया जो अच्छा चरवाहा करता है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये कलाम मुकद्दस जो है,
اگر ہم اس کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ محبت ہے. میم ہے بے تے محبت, اور انگلش میں ہم کہتے ہیں لو, LOVE لو. لیکن یہ لفظ جتنا آسانی سے ہم بول لیتے ہیں اور جتنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, اس کا یہ اتنا ہی مشکل ہے اس پہ عمل کرنا, بہت مشکل ہے. آسان جو لفظ ہم بولتے ہیں محبت, امن کہتے ہیں آسانی سے, لیکن جب ہم اس پہ عمل کرنے جاتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہے. تو یہ ایسے ہی ہے محبت. یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شہباز بھٹی نے وہی کیا جو یسوع نے کیا. اپنی جان, کوئی نہیں اپنی جان دوسروں کے لیے دیتا, وہی دیتا ہے نا جو انکنڈیشنل لو, وہ لو جو جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اور یہ وہی شخصیت ہے جس نے, یسوع کے رسولوں نے بھی کیا کیا تھا, یسوع کے رسولوں نے کیا کیا تھا, اپنی گردنیں کٹوا دی تھی, اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا, یسوع کے لیے کیا تھا. اور یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ یسوع, یہ شہباز بھٹی نہیں, یہ یسوع کے رسول کی طرح اس نے اپنے آپ کو پیش کیا, اور وہ ایسے ہی کیا جیسے ابھی بابو جی سینٹ تھامس کا ذکر کر رہے تھے. میں پچھلے ہفتے اسلام آباد میں تھا اور میری ملاقات رحمان ملک صاحب سے جو پیپل پارٹی کے سینٹر ہیں. آپ یقین کریں انہوں نے شہباز بھٹی صاحب کو اتنے اچھے لفظوں میں یاد کیا, اتنا انہوں نے خراج تحسین ان کو پیش کیا, شاید ہم سے بھی بڑھ کر انہوں نے ان کی عزت میں جو لفظ بولے میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. تو مسیح میں میرے عزیزوں, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور خاص طور پر آج کی اس جو برسی ہے اس میں عمران غوری صاحب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لگا ہے ساری سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت جس کا میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تعلق نہیں ہونا چاہیے. اپنی اپنی آبزرویشن ہے, ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے آبزرویشن اور اپنے خیالات ہوتے ہیں. مذہبی سیاست کو, مذہب کو سیاست سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے. اور دوسری چیز میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے, بہت سارے ایک صاحب اسکول بھی چلا رہے ہیں, تو ہمارے بچوں کو سیاسی بلیدگی ہمیں دینی ہے. شہباز بھٹی صاحب کی خدمات بالکل سارے اسے اعتراف کرتے ہیں, ہر بندہ اعتراف کرتا ہے, لیکن اس پہ بس نہیں ہو جانی چاہیے. ہمیں آگے لیڈرز بنانے ہیں, صرف باتوں سے نہیں, عملی اقدام سے. 8ویں 9ویں 10ویں میں ہمیں بچوں کو سیاسی طور پہ سیاسی بلیدگی, سیاسی جو ہیروز ہیں جیسے نہرو جیسے بہت سے دوسرے سیاسی لیڈرز ہیں, انہیں پڑھانا چاہیے, انہیں ڈیٹیل میں پڑھانا چاہیے, انہیں ریسرچ کی طرف لانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر سیاسی لوگ پیدا ہوں گے, سیاسی بچے ہمارے آگے لیڈر بنیں گے, تو پھر بہت سے ہمارے شہباز بھٹی, ہمیں دنیاوی جو اویلیبل ریسورس ہیں ان میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا سپیس بنانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے, سیاسی طور پہ انہیں اتنا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ ہماری بات آگے کر سکیں. اور میں سیاست پڑھاتا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, پولیٹیکل سائنس میں ایم فل ہے میرا, تو ماسٹرز اور BA کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. مسئلہ ہمارے لوگوں کا یہی ہے کہ سیاسی بلیدگی نہیں ہے, لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور انہیں سیاسی طور پہ ہمیں مضبوط کرنا ہے. اپنے بچوں کو اسکول لیول سے انہیں ایجوکیشن بھی سکھانا ہے, انہیں اس طرح کے جو احتجاج ہوتے ہیں ادھر بھی لے کے جانا ہے ہم نے, کہ وہ جانیں ہاؤ ٹو ڈو, کس طرح ہم اپنا احتجاج ریکارڈز کر سکتے ہیں. پڑھنے کا رواج کم ہو رہا ہے, انہیں میکسیمم ہمیں پڑھانا بھی ہے. اور سیاست سے مذہب کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینی چاہیے کہ بھائی مذہبی لوگ سائڈ پہ ہو جائیں, ان کا جو کام ہے نا وہ وہی کریں. سیاست سیاستدانوں کو کرنی چاہیے, سماجی کارکنوں کو کرنی چاہیے, کیونکہ جب یورپ نے بھی مذہب کو الگ کیا ہے سیاست سے تبھی اس نے ڈیولپمنٹ کی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شکریہ ندیم صاحب. میں جناب نیشنل نیوز نامہ جو آج ہمارے ساتھ جوائن کیا, جنہوں نے ہمیں ان کا دل کی گہرائی سے, خاص طور پر ڈاکٹر فرانسس سوداگر صاحب کا بھی شکر گزار کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اور گریس ٹی وی کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا, تو ہم ان کا شکر گزار ہیں. کینڈلز آپ کے پاس ہیں, بس آپ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناب آگے آ سکتے ہیں. صاحب کینڈل لے کر یہاں آ جائیں, اور تاکہ ہم ان کی شہادت کو سلام پیش کر سکیں.